Hello everyone, this is Jay Prakash, Principal HR Trainer from Y for Best. And guys, today also I am going to start the One Success Talk Show. And I am going to conduct the Success Talk Show. Especially today our successful guest is Ms. Preeti Chakrabarti. And she has got a very reputed organization. There is a one best job. She has got the best opportunity, and then after that she cracked the interview also, and finally she is going to join in the Indian Gems and Jewelry Creations Private Limited. That is one of the very reputed organizations. There she is going to join as a HR manager. So really this success talk show is going to be very interesting to all of you, because you people are going to learn and get the exposure or experience about that, how to crack the interview, how you have to, if you are looking forward to get the best job in the especially corporate, so then this success talk show will help you a lot, because there are numbers of interesting informations we are going to exchange to each other, and these all informations especially is going to be helpful for all HR aspirants, all HR professionals, those who want to upgrade their career or those who want to set their career in the HR domain, especially freshers. So for everyone, this success talk show is going to be a very much useful and very much informative. So now first welcome to this success talk show, Preeti. Preeti, welcome to our success talk show, and especially जो हमारे viewers हैं, जो हमारे audience हैं, वो सब आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे. तो आपकी ये सेशन काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है. तो सो आई होप दैट वो भी इंजॉय करेंगे और साथ ही आप भी हमारे सक्सेस टॉक शो को बिल्कुल इंजॉय करेंगे. तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो आप आई फॉर बेस्ट में आप कैसे आई, आई फॉर बेस्ट में आपका ट्रेनिंग कैसा अभी चल रहा है. गाइज वन थिंग्स मोर आई टेल यू दैट सी इज राइट नाउ, इनका ट्रेनिंग चल रहा है अभी, ट्रेनिंग नॉट येट कंप्लीटेड, लेकिन बीच में ही एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है, जिनको एक जॉब लगी थी, हम सब लोगों के लिए एक बेस्ट थिंग है, जो क्योंकि पर्पस तो यही था जो आई फॉर बेस्ट में ट्रेनिंग लेंगे उसके बाद एक जॉब यहाँ से मिल जाए, राइट. तो बीच जर्नी में ही जॉब मिल जाना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ से मिलता है. प्रीवियस गेस्ट हमारे थे बेसा जोरदार, जिन्होंने भी जॉब यहाँ से की, अभी ट्रेनिंग उनका चल ही रहा है. तो अब मैं जानना चाहता हूँ आई फॉर बेस्ट में आप कैसे आई, और आई फॉर बेस्ट में जब आप यहाँ पे आई तो फिर उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा आई फॉर बेस्ट का, प्लीज़ शेयर विथ अस. First of all, thank you sir for giving me this opportunity. It is also immense pleasure that to share my experience, so that everybody can help. I mean, everybody can at least assume that what the hard work or what are the things they have to do in near future for their, I mean, to succeed. So first of all, I have researched about the I for Best in last, but before that I have a mind that how to make a payroll, because I have worked in in reputed company in previous. There has a 5 years of experience, but after, because every organization they don't give that much of exposure to every in HR domain. So there are certain I mean the restriction. So from the very beginning I have an interest. I will do the this co-recruitment part. I will do in compliance, and as well as also this payroll. This kind of, I have a very beginning I have the interest this kind of in this domain. So in one evening I researched that if there is any organization who give this the basic knowledge about this. So I researched almost one whole day. Okay. After that I came to know that these are the 3 to 4 institutes coming in Google. So I have researched about the I for Best. So their remarks was, the review was very good. Okay, then I called after that day. Then I called, and I also called you also because that time you was in class. Okay. So unfortunately, I mean no conversation between you and me. That's why after that I called Rinku madam and told that I have an interest this kind of. Yes, you can, no issue. So these are the, I mean the courses we are providing in practically professionally, how you can handle this kind of this thing. So I think yes, this is the best opportunity for me, so I have to grab it, and at any point of time I will not waste any of the time, so this to grab this opportunity. So in this way you came I for Best. Okay, great. So this is a very interesting
interesting. Yeah, this was you know, really very interesting. Once you came I for West, then after that, how was your experience? Yes, it was really very great experience because as I'm a married, I have some restriction. I mean, as I am a baby also, so I every day it's not possible to come here and attend the class. I mean, from the beginning, every day I attend class from the online. So there is no issues about this because. Okay. दिस इज दी वन डाउट, ये बस बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये डाउट रहता है जो मैं ऑनलाइन पता नहीं कैसा क्लास होगा, क्या होगा, ऑफलाइन में तो चलो सामने से सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, लेकिन ऑनलाइन में कैसा रहेगा। तो सो ये एक एक्सपीरियंस आपका है जो कि जो ऑनलाइन में अगर करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? मतलब क्या होता है ना, ऐसा सेशन होता है कि नींद आ जाए, मतलब बात क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होता था। बहुत इंटरेक्टिव सेशन होता था। और क्या ना, सबसे ज़्यादा मतलब सर आपका मतलब अपने मतलब अंदर से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस बारे में। मतलब जो प्रैक्टिकल थिंग्स आप बोले ना, मैं आई कैन रिलेट विद माई प्रीवियस एक्सपीरियंस। These are the things really happen, really happen. Actually कंपनी कॉस्ट, मतलब कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होता है, तो उसमें क्या करें, अगर कॉस्ट है तो क्या करें। So these are the basic things you should know before going to the interview. You have to be very professional and practical. Whatever you are telling to that employer who are taking your interview, on that particular case, don't tell any fictitious things. That's yes, not possible. You have to be very to the point answer. If this will be the scenario, then in this scenario what will be your effort. So on that particular sense, I have learned lot of the things. I can't say in a point by point, but okay, it's really it was really very grateful. right. First guys, one thing more I'll tell you here that प्रीति ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया और मैं इस चीज़ को रिपीट करना चाहता हूँ। और स्पेशली मैं अपने सारे ट्रेनीज़, जो भी हमारे ट्रेनीज़ हैं, क्योंकि मेरा तो हमेशा यही कंसर्न रहता है हमारे ट्रेनीज़ को काफ़ी सक्सेस मिले, हमारे ट्रेनीज़ काफ़ी कामयाब हों, वो हर तरह से उनको जो भी डिज़ायर्ड गोल है वो फुलफ़िल हो बेस्ट वे में। तो उसमें एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत अच्छी बातें बोली हैं, जो मैं जब भी सेशन में रहा और उस वक्त में जो भी मुझे बताया गया, बहुत कुछ मैंने कोरिलेट किया जो ऑर्गेनाइजर से पहले मैं जो काम करता था उसके साथ मैच करता था। यानी और यूजुअली मैं बोलता हूँ अपने सारे कैंडिडेट्स को, जो मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी सक्सेस, जो भी मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी नहीं होता है, वो जो हमारे एक्सपीरियंस है वही मैं आपको बताता हूँ। और जो कि इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल बताया, जो कि वो सारी चीज़ें मैच कर रहा है और बिल्कुल मैच करेगा जो काम किए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, 5 to 6 years पहले काम किए हैं एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ये अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पे रख रही हैं। तो जो एक्सपीरियंस है उस वजह से वो कोरिलेट कर पाते हैं, नहीं ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट। तो आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी एक्सपीरियंस वाली बातें शेयरिंग होती है ना ट्रेनिंग के समय में, उस सब चीज़ों को आप ऐसे इंटेक कर लो जिससे कल होकर कोई समझे ये भी एक एक्सपीरियंस पर्सन है, राइट। मेरा फोकस यही है। जो जब मैं आपको जैसे बोलते हैं ना, जब किसी कंपनी में हम काम करते हैं तो काम करने वक्त में बहुत से पूछते रहते हैं, सर कैसे हो गए, जैसे आप बोल रही थी, मैं हमेशा पूछते रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो वो जो आप पूछते हो तो वो भी तो अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और वही चीज़ों को हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। दैट इज थिंग्स माई इंटेंशन हियर, दैट वही चीज़ मेरी भी है, जो मैं जो चीज़ जाना हूँ वो मैं अपने ट्रेनीज को बता दूँ। तो ये आपने बहुत अच्छा चीज़ को एक कंफर्म किया, अपने स्टैंप लगाया, दैट इज द ग्रेट थिंग। कोई चैलेंजेज ऐसा जो ट्रेनिंग के समय में आपको कोई ऐसा टॉपिक या कोई पर्टिकुलर जहाँ पे एक चैलेंज आया हो और जिसमें आपको लगा हो जो कि नहीं इस चीज़ को मुझे समझना है और उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस आपने किया हो, या फिर उस पर कुछ होमवर्क करना पड़ा हो आपको आगे, कैन यू शेयर दैट एक्सपीरियंस? Yes sir, in this case also when I gone for the interview, so I have researched a lot. In morning I thought what I need to be revised in the compliance, payroll, recruitment, what I need to. But after done the interview, I realized one thing, to be very basic, to have the knowledge, the basic knowledge. They are asking about, okay, if you are calculating the PF, so this is the basic. You should know this, the basic things. No need to do no need to research about everything. Great. Then it will be, opposite. What I will, in some cases there are some fresher also. They thought that if I will give so much, if I will acquire all the knowledge and I will thoroughly everything I will tell. No, to be very specific about the answer. If interviewer is asking, okay, tell me this calculation, okay, need to be very specific.
no need to give them the so much knowledge to Right. have. So this is the मैं यही बातें बताता भी हूँ अपने सारे ट्रेनीज को, और मैं ये हमेशा बोला करता हूँ जो नोट्स आपको दे रहा हूँ वो बाइबल का काम करेगा, Yes, वो आपको obviously. गीता का काम करेगा, Yes. वो आप बस उस चीज़ को ध्यान में रखो। में क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है क्या प्रीति, जो भी यूपीएससी कंप्लीट करते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज जो गवर्नमेंट की कंपटीशन भी क्रैक करते हैं, या फिर तो वो एक जस्ट एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं वही काफ़ी है। जो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो उनकी सक्सेस की चांसेस कम हो जाती है। तो सो मैं बहुत सारे लोग मेरे को बोलते भी हैं, जो तो मैं बोलता हूँ नहीं, पहले आप बेसिक पे रखो। Yes. क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर बेसिक से ही स्टिक होंगे। अगर उनको मालूम है जो कि जो बेसिक थिंग्स ये जान रहे हैं, Yes. तो इसका कॉन्सेप्ट अगर इनका क्लियर है तो Clear फिर है। ये काम कर ये लेंगे। काम कर लेगा, क्योंकि बिल्कुल। अगर 10 एम्प्लॉय का कोई पेरोल बना रहा है या 1000 एम्प्लॉय का कोई पेरोल, उसको अगर बेसिक ही मालूम नहीं तो वो 1000 का भी नहीं बना सकता, 10 का भी बिल्कुल, नहीं बना सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। मेन थिंग्स दैट नीड्स टू बी, आई मीन नो। तो बहुत अच्छी बातें गाइस प्रीति शेयर कर रही हैं आप लोगों के साथ, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। आप इस सारी चीज़ों को आप लोग जहन में रखोगे, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, जो एक बिल्डिंग बड़ी अगर खड़ी करनी है तो उसकी नींव जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। वैसे आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो फिर आपको जो है काफ़ी अच्छा से आप कंपनी का एचआर की जितनी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, और एम्प्लॉयर भी आपसे सेटिस्फाई होंगे। कुछ चैलेंजेस कैलकुलेशंस वगैरह में टैक्स का आया आपका? हाँ हाँ, वो तो आया था, बट मतलब एक्चुअली कुछ भी मालूम नहीं था उसमें कैसे करना है। तो वो सर आपने तो मतलब जितना बार मैंने पूछा उतना बार ही आप क्लैरिफाई की। एक दिन तो मेरा ऐसा गया कि मतलब ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, मतलब बहुत मतलब आउट ऑफ ये टॉपिक जा रहा था। तो बाद में मतलब खुद ही मतलब आपसे पूछा, आपसे मतलब हेल्प लिया, उसके बाद वो हो गया। राइट। और आप मुझे बता रहे थे जब कैलकुलेट एक क्लास भी आपका मिस हुआ था, और उस वक्त में आप हाँ। बाद में वीडियो वगैरह भी देखा। Exactly. लेकिन वन थिंग इज गुड दैट यू आर अ वेरी क्विक लर्नर। आप बहुत जल्दी लर्न करते हो कोई चीज़। एक चीज़ मैं गाइस बताऊंगा, सी इज़ अ वेरी क्विक लर्नर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, सक्सेस जब किसी को मिलता है ना, उसके पीछे कुछ चीज़ें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने प्रीति में ऑब्जर्व किया है। और मैं चाहूँगा आप सब लोग इस चीज़ को अपने अंदर लाएं। मीन्स ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इस क्वालिटीज़ को डेवलप करें, और जिनके पास है तो पक्का यकीन रखो उनको कामयाबी मिलेगी। सबसे पहला जो इनमें हमेशा जो लर्निंग का, सीखने का, इनमें हमेशा जो है बहुत ही बड़ा हंगर है, एक भूख है इनके अंदर जो मुझे सीखना है। बिलीव मी गाइस, आई विल टेल यू दैट ये इंटरव्यू के लिए फीडबैक लेने के लिए मेरे पीछे काफ़ी पड़ी, और कितनी बार क्वेश्चंस किए, कितनी बार कॉल किए। मुझे नहीं लगता जो हर कैंडिडेट्स इतना पीछे कॉल कर पाएंगे, जो कि और मैं यूजुअली क्या है, मैं ये नहीं मालूम था इंटरव्यू के लिए, तो ऐसे भी तो ट्रेनिंग के टाइम में, क्लास टाइम में, फिर उस वक्त में हम सारे अच्छे से बता देंगे। फिर ज़रूरत पड़ा तो आधा एक घंटा का टाइम भी रखें, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहने से कभी कभी नहीं पिक कर पाते हैं कॉल। लेकिन तब इन्होंने कंटिन्यूसली स्टिक रहा, जो कि नहीं मेरे को जानना है, सर से बातें करनी है, और ये नहीं चलो एक बार कॉल किया नहीं उठाया, ठीक है चलो छोड़ देते हैं, नॉट लाइक दैट। तो सो ये एक जिसमें ये एक ऐसा मतलब एक एटीट्यूड हो जो नहीं मेरे को सीखना है, किसी भी तरह से पीछे पड़ जाना है, सीखना है, पूछना है, तो उनको कामयाबी मिलती है। तो सो पहला चीज़ तो ये मैंने देखा। और जब भी मैं इनको बस अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मेरे को बात एक बार करवा दो सर से, लाइक दैट। और एक बाद जब इन्होंने बातें किया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप जो भी चीज़ें पूछ रही थी, वो चाहे अमीनो एक्ट को लेकर के हो या जो भी, तो वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा। जो आप होमवर्क करके पूछ रहे हो, तो वो जो होमवर्क करके आप, वो चाहे फॉर्म्स के बारे में जानना हो, वो चाहे एक्ट्स को लेकर के जानना हो, क्या सा क्वेश्चंस आ सकता है, कैसे इंटरव्यू में मेरे को क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। तो जब इस तरीके का इंटेंशन हो ना, तो उसको सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है। वो पैसन मुझे तब मैं ये रिलेट भी कर पाया, जो इस इज़ वेरी मच पैशनेट, तो सक्सेस तो मिलेगा और कामयाबी मिलेगी आपको। मैं बोला भी आप जाओ, आपको कामयाबी मिलेगा, बिल्कुल आप क्रैक करोगे। और मैं ये चीज़ आपको बोला था जब फाइनल, जो पता नहीं सर क्या हुआ, कहने वाला बिल्कुल आपको इंटरव्यू में आप क्रैक करने जा रही हो और सक्सेस आपको मिलेगा। एंड गाइज फाइनली शी इज सक्सेसफुल, she got the success and she is going to join as a HR manager। तो ये हम सब लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट है, एक प्राउड मोमेंट है, जो आप काफ़ी अच्छा, और बस अभी की है वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से काम कीजिए। कल होके ये लगे जो नहीं है, मेरे को आई फॉर बेस्ट से और भी कुछ ट्रेनी चाहिए, और भी कुछ स्टूडेंट्स चाहिए। और मैं चाहूँगा जो आप चूँकि मैनेजरल पोजीशंस पे ज्वाइन कर रही हो, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे जो हमारे ट्रेनीज़ हैं उनके लिए भी एक सपोर्ट फैक्टर का रोल आप प्ले कीजिए। जहाँ पे भी लगे जो किसी को मैं अगर अपने एफर्ट से कहीं पे कामयाबी दे सकता हूँ, तो प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हम लोगों को आप सपोर्ट कीजिए उसके लिए।
आई फॉर बेस्ट के बारे में, आई फॉर बेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या आप सोचते हो, क्या पहले क्या एक फीलिंग्स थी जब मैं यहाँ पे आया था? क्योंकि जब आते हैं तो कोई भी सोचते हैं पता नहीं कैसा ट्रेनिंग होगा, क्या होगा, चलो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेरीज होती है। जब कोई भी बिगिनिंग स्टेज में आता तो बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, तो अभी वो क्या चीज़ उसकी फीलिंग आ रही है, प्लीज शेयर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ पे आई थी, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगा था कि ये भी शायद एमबीए के जैसा ही होने वाला है, क्योंकि एमबीए में क्या है ना, थियोरेटिकल बहुत सारा नॉलेजेस दिया जाता है, बट क्या है ना वो मतलब प्रैक्टिकली कहाँ पे यूटिलाइज करना है। देखिए हम मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो उतना बड़ा इंस्टीट्यूट से नहीं किया जहाँ पे मे बी दे हैव सम ग्रेट एक्सपोजर फॉर दैट, तो सो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। तो इसमें क्या होता है, उतना सारा नॉलेज प्रैक्टिकली यूटिलाइज करने का जगह नहीं मिलता है, क्योंकि बुकिश नॉलेज है। राइट राइट, टोटली एग्री। मतलब जो इंडस्ट्री हम लोग मतलब जो कंपनी हम लोग फेस करने जा रहे हैं और जो पढ़ाया जाता है उसमें बहुत सारा अंतर होता है, क्योंकि वो कहाँ पे यूटिलाइज करे वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे लगा था कि शायद क्या होगा, मतलब इतना बड़ा वास्ट नॉलेज है, उसमें से सर कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके साथ मेरा बात भी हुआ था उस दिन लास्ट में, मतलब जब जाने वाली थी तब बात हुआ, तो आपने वो मतलब क्लियर किया कि देखो जो जो तुमने उसमें पढ़े हो उसके रिलेटेड ही होगा, बट क्या है ना जो ऑर्गेनाइजेशन में अभी चल रहा है, मतलब क्या क्या करना है, right. वो तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा, वो तुम्हें प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि ठीक है मैन पावर प्लानिंग इज लाइक दैट, इट्स एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल, बट मैन पावर प्लानिंग कहाँ पे करना है, कहाँ पे कैसे करना है, किसको अप्रोच करना है, वो फॉर्मेट कैसे बनाना है, कैसे कंपनी के सामने अगर नहीं है तो इम्प्लीमेंट कैसे तो ये जो चीज़ें है ना वो एमबीए में नहीं होता है, मतलब एज पर माई नॉलेज, हो सकता है किसी का सही बात हो सकता है, बट एज पर माई नॉलेज है। तो ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है ना, ये सब बहुत मतलब मेजर रोल प्ले करता है इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू। राइट तो ये आपको काफ़ी अच्छी एक्सपोजर है यहाँ पे, जो कि छोटी छोटी चीज़ों पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको काफ़ी रहा, और धीरे धीरे जैसे आपकी ट्रेनिंग बढ़ती गई तो कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होते गए आपका। बहुत, क्योंकि एज आई टोल्ड यू दैट 2.5 years of I have a gap. Okay, so after that, yes, I have done research on in this field also, me also, what are the drawbacks I have, what are the weaknesses I have. So I have recovered a lot. At least I tried to recover so that I can get a better opportunity in career. So in I4Best is the part to get, to boost up my this confidence and the knowledge to enhance. So this is one obviously the integral part of my this career. Great. I have failed many on interview. So why? Because I told you I gained so much knowledge, so much research. So then I realized, okay, this is my, in every interview when I failed, I point out all the notes. Even I have these notes also. So for what reason I have failed. So these are the homework I have done. And I remember that once I had a talk with you during the training also, first 1 or 2 class. तो इट सीम्स दैट यू हैव सम नॉलेज। ये मुझे ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें पूछता था आपसे तो कुछ बातें आप बताती थी, और सबसे बड़ी बात है जो यू आर अ प्रोएक्टिव, और एक और गाइस इनमें एक खासियत रहा है जो कोई भी, ये मैं चाहूँगा सारे ट्रेनिज भी ये अपने डेवलप करें इस चीज़ को, जो अगर मैं कुछ बताया तो उसमें यू ट्राई टू कंट्रीब्यूट योर इन्फॉर्मेशंस ऑल्सो। ऐसा नहीं जो चलो शांत रहते हैं, मैं जानता हूँ तभी मैं अपनी बातें क्यों रखूँ यहाँ पे, चलो ठीक है कोई रिपोर्ट ही बनाना है तो मैं अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाऊँ, मैं इसको ऐसे बनाऊँ, आप थोड़ा देखिए ये मेरा फॉर्मेट देखिए कैसा रहा, और ये मैं आपको देखता ना हर चीज़ को शेयर करना, सर आप ये मेरा देख लो थोड़ा सा कैसा फॉर्मेट है, प्लीज़ इनपुट मी, जो क्या इसमें सही है क्या गलत है। तो ये चीज़ आप सब लोगों को भी डेवलप करना पड़ेगा, ये चीज़ें इनके अंदर मैं काफ़ी देखा हूँ। तो सो दोज ऑल थिंग्स इफ यू पीपल आर डेवलपिंग ना, तो देन आप भी ऐसे ही चेरिश मोमेंट करोगे, ऐसे ही सक्सेस मोमेंट आप भी चेरिश करोगे, और यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी ज्वाइन एज अ मैनेजरियल पोजिशंस, एग्जीक्यूटिव पोजिशंस, ऐसे आप भी ज्वाइन करोगे। आपका इंटरव्यू कैसा रहा, क्योंकि ये चीज़ें सब कैंडिडेट्स पूछते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को, तो एक मैं बहुत ही शॉर्ट में जानना चाहता हूँ, 3 to 4 मिनट्स में आप पूरा रैप अप कर दीजिए इस चीज़ को। जो आपका इंटरव्यू कितने राउंड हुआ,
क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और किस तरीके का इंटरव्यू रहा आपका, जिससे कि जो हमारे ट्रेनिज को से मीन्स एक आइडिया मिल जाए, जो मैं भी कभी इंटरव्यू में जाऊंगा तो ऐसे इंटरव्यू होगा हमारा और इस तरीके से मुझे इंटरव्यू देना है। तो सो ये इसके बारे में आप एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्शन तो पार्ट होता है 3 राउंड, आपका 3 राउंड इंटरव्यू आपका हुआ था, राइट? तो फर्स्ट एक्चुअली 2 राउंड में जो इंप्रेशंस क्रिएट करना था वो हो गया। तो वो जो अच्छा, फर्स्ट राउंड में आपका इंट्रोडक्शन और कोर नॉलेज पूछा गया था क्वेश्चन, और कहाँ कहाँ काम किए। अगर बहुत सारे चैलेंजेस वो लोग दिए थे कि अगर रिक्रूटमेंट में बेसिक, बिकॉज रिक्रूटमेंट तो होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कंपनी कैसे सही चलेगा? बात है, सही बात। मैन पावर रिसोर्सेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो वो तुम कैसे ले पाओगे? ओके, तो इसके लिए आपसे पूछा गया था रिक्रूटमेंट्स में। और ये फर्स्ट राउंड में पूरी रिक्रूटमेंट बेसिस थी या और भी कुछ? रिक्रूटमेंट बेसिक थी और क्या क्या काम मैंने किया है उस रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चंस, यानी कि आपका करंट वर्क ऑर्गेनाइजेशंस जो आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस आपका था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे, क्योंकि यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछा गया था। फिर उसका सेकंड राउंड इंटरव्यू में थोड़ा सा वास्ट गया था, क्योंकि उसमें और थोड़ा सा कॉम्प्लायंस वगैरह से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब कौन सा अपनी, क्योंकि आप मुझे थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस शेयर की थी। तो कौन सा मतलब कौन सा लेवल पे आप काम किए हैं, तो ये चीज अब यहाँ पे जो पेरोल सॉफ्टवेयर का, तो अब जिसमें जो चीज़ आप नहीं किए हुए हो तो तब वहाँ पे एक चैलेंज हो जाता है, जो कि आपको ट्रेनिंग थोड़ी हेल्प करती है। जो ये चीज़ अगर मैं जानता हूँ तो सम इनपुट्स आई कैन शेयर। जैसे PFESI का वर्कशॉप आपने किया है अटेंड अभी, या अभी आपका चल रहा है? अच्छा, PFESI का भी सेशन आपका चल ही रहा है, तो सो वो सारी चीज़ों का रिगार्डिंग कुछ इनपुट्स आपने वहाँ पे शेयर किया, कुछ आपसे पूछा गया? तो उन लोगों का क्या है ना, उन लोगों का सिर्फ कोऑर्डिनेशन से, अभी जो रिक्वायरमेंट है मतलब कोऑर्डिनेशन उन लोगों का अच्छा होना चाहिए, हु आर आउटसोर्सिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, मींस स्पेशली यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द वेंडर्स एंड दीस ऑल एवरीथिंग, एंड आफ्टर that will be all taken care about by me in future. Okay, great. Outsource from yes, certainly these things happen that जो उनको जब assured हो जाता है, जो नहीं अब ये confidently सब कुछ समझ गई हैं, अब कर सकते हैं, तो आगे those responsibility will be given to you, right? और थर्ड राउंड इंटरव्यू फिर आपका बिहेवियरल इंटरव्यू रहा मैनेजमेंट के साथ। बिहेवियरल रहा कि मैं कैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन, टाइम मैनेजमेंट और टीम हैंडलिंग, ये सब के बारे में। आपको कुछ रिटन ड्राफ्ट्स वगैरह भी कुछ बोला गया करने के लिए, या कुछ भी ऐसा? ये आपको नहीं करना गया, बस पूछा कि ड्राफ्टिंग आता है या नहीं आता है, बस वही। राइट। तो सो ड्राफ्टिंग और एक्सेल का, ये दोनों का मैं पहले एक जगह फेस की थी, बट यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस आ गया, मीन्स यू नो वंस यू आर टेलिंग कॉन्फिडेंटली एंड सामने वाले को अगर अस्योर्ड हो जाता है यानी ये कर सकती हैं, तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, राइट? दिस थिंग्स हैपन। तो सो गाइस, जस्ट मैं ब्रीफ में यहाँ पे इनसे एक एक्सपीरियंस इंटरव्यू का लिया, और ये भी इन्फॉर्मेशन आप लोग काफ़ी यूजफुल होगा जो किस तरीके से इंटरव्यू होता है। वैसे मैं अगेन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो हर कंपनी का जरूरी नहीं है जैसे इंटरव्यू प्रीति ने दिया ऐसे इंटरव्यू हर जगह होगा। इंटरव्यू हर जगह अलग अलग, जैसे अभी एक कुछ देर पहले बोल रही थी, जो इनका एक कंपनी में एक्सेल का टेस्ट हुआ और वहाँ पे मशीन टेस्ट हुआ, लेकिन दूसरी कंपनी में नहीं हुआ। तो ये सामने वाले का कॉन्फिडेंस पे भी होता है और एक रिक्वायरमेंट पे भी होता है, जो हमारा क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से असेस करते हैं। अब हो सकता है किसी की जगह पे एक्सेल पे पेरोल नहीं होता हो, अब वो पेरोल सॉफ्टवेयर तो एक्सेल का क्यों टेस्ट लेंगे, वो वहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन जहाँ पे एक्सेल की प्राइमरी वर्क होती है तो फिर एक्सेल का टेस्ट लेंगे। तो सो ये सारी चीजें भी होती है। तो सो ये एक बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया। मैं थोड़ा सेशन को लंबा करते जा रहा हूँ, तो ये क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं जेडी में ना बहुत कुछ दिया, जैसे आपने बोला ना, मैंने पहले भी जेडी बहुत अच्छे से देखा था, तो बट जाने के मतलब वहाँ पे जाने के बाद मुझे और भी कुछ क्लैरिटी मिल गया, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर बहुत हेल्पफुल रहते, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ को बोल देते बारीकी से कि ये तुमको काम कर, कोई बोलेगा नहीं, बट तुमको एनालाइज करेगा कि तुम्हारे अंदर कितना है। तो ये इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने भी 4 या 5 इंटरव्यू फेस किया था, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू। कोई स्पेसिफिक था नॉलेज के लिए, कोई वास्ट भी था, कोई आउट ऑफ नॉलेज भी गए, कोई बहुत फेमिलियर था। तो ये ग्रेट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर किया। तो सो thank you very much for sharing your informations to all of us, and really this is the one of the best moment for all of us, और मेरी best wishes आपके साथ है। and guys, such type of success story time to time I'm going to share to all of you. Just only one thing you have to do, that you have to subscribe our channel, you like our channel, and you forward this video to numbers of other needy peoples also. Needy people means HR aspirants, HR professionals, or those graduates
who right now searching for the option especially for the employment, तो then one HR भी एक उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जॉब के लिए। तो सो सारे लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो सबको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। अगेन आई एम टेलिंग दैट यू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, एंड सच टाइप ऑफ वीडियो टाइम टू टाइम आई एम गोइंग टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। प्रीति जैसे ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आगे भी आने वाले हैं, और आगे भी इस तरीके की बहुत सारे सक्सेस स्टोरी हम शेयर करेंगे, एंड सक्सेस विल गो ऑन, सक्सेस स्टोरी विल गो ऑन, ये हमेशा कंटिन्यूस चलेगा, बोलते हैं ना शो विल गो ऑन। तो सो हमारे यहाँ पे सक्सेस स्टोरी का शो भी चलते रहेगा, बस आप वेट एंड वॉच करते रहिए हमारे नेक्स्ट कमिंग जो है सक्सेस स्टोरी को। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल विथ न्यू सक्सेस स्टोरी वेरी शॉर्टली, बाय एवरीवन।